Hello dear students, this is my first video with voice and fifth part of electrostatics MCQs. These are the two spheres with radii r1 and radii r2. This is volume 1, 2, and these two are connected with the wire. यहाँ पे हमसे पूछा गया है what is the ratio of sigma 1 by sigma 2. See students, whenever we connect two things, that is known as sorting. Sorting means it is also known as same potential. Hence we can say that potential of sphere 1 is equal to potential of sphere 2. That is V1 is equal to V2. देखो बच्चों, एक स्फीयर के लिए पोटेंशियल होता है potential for one sphere. It is always 1 upon 4 pi epsilon and k. You know what is k? K stands for, k is a constant. ये dielectric constant भी बोल सकते हैं इनको. If it is in vacuum or air, it is 1, or if it is in a medium, the value will be given to you. Okay, Q upon R. ठीक है, तो this is for sphere 1. So we will write Q1 and Q2. R1, which will be equal to 1 upon 4 pi epsilon k into Q2 upon R2. Got it? These two will get cancelled because both are in the same medium. But Q1 and Q2, these are different, so they won't get cancelled. Therefore, here we get Q1 by R1 is equal to Q2 by R2. ये हमें ये रेशो एक्चुअल में we'll continue. So up till now we got Q1 by R1, Q2 by R2. तो इन रेशो जब हम करेंगे तो हमको मिलेगा Q1 by Q2 is equal to R1 by R2. Now ये हमें कहाँ से मिला? ये रेशो हमें मिलता है हमारे फंडा से, which is known as shorting. Shorting means same potential. अब हमें ढूंढना है रेट ऑफ चार्ज डेंसिटी. चार्ज डेंसिटी मीन्स क्या होता है? अर्लियर वीडियोस में मैंने बताया था सरफेस चार्ज डेंसिटी मीन्स सिग्मा. तो हमें ढूंढना है सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 और इनका रेशो.
मैंने बताया था सिग्मा 1 by sigma 2. This is to be found out. So सिग्मा 1 का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा 1 का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन एरिया. Okay. So for first sphere, this is too big. तो सिग्मा 1 का सिग्मा का जो है सॉरी this is the formula for finding the charged density. And for first sphere, sigma 1 is equal to q1 by a1, which is equal to q1 upon area. Area for any sphere we know, pi r1 square. Second sphere के लिए that is sigma 2 is equal to q2 by a2. देखो बच्चों, don't get confused. Sometimes I write capital Q, sometimes I write small q. इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है. Both are the symbol for charges. तो small q और वो by fluke it gets written by any teacher, or it is one and the same. Small q and capital Q. Sometimes I write small q, sometimes I write capital Q. It is one and the same. So don't get confused. Is equal to again q1 upon 4 pi r2 square. Got it? This will get cancelled. 4 pi. R1 and R2 cannot be get cancelled because they both are different. Okay. Therefore, what we get is sigma 1 by sigma 2 is equal to q1 by q2 into r2 square upon r1 square. यहाँ पे ये देख सकते हो आप लोग, q1 के साथ मेरा r2 आया और q2 के साथ r1 आया, बिकॉज दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. तो नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे हो जाता है. गॉट इट? ये इन्वर्स हो ही जाएगा. तो therefore and sigma 1 by sigma 2 is equal to q1 by q2 is equal to r2 square upon r1 square. r1 by r2 ये इन्वर्स हो जाएगा. एंड वी नो अबाउट, जो मैंने बताया था स्टार्ट में, कि q1 अपॉन q2 इज इक्वल टू r1 अपॉन r2. ये क्यों बताया था? क्योंकि ये हमें कहाँ से मिला था? ये रिलेशन है इस क्वेश्चन में. इसका ये हमें पता चलता है क्योंकि हमें पता है ये शॉर्टिंग से हुआ है, सेम पोटेंशियल है, इसलिए इस MCQ में this is valid. Got it? Therefore, substituting sigma 1 by sigma 2 is equal to r1 by r2 into r2 square upon r1 square. So this r2 and this one r2, this r1 and this r1 will get cancelled, and what will remain is r2 by r1.
Therefore, sigma 1 by sigma 2 is equal to R2 by R1. Hence, option B. 4-point charges -q, -q, 2q and 2q are placed at each corner of the square. The relation between q and q, for which the potential at the center of the square 0 is, यानी हमें बोला गया है कि एक स्क्वायर है, let me draw. Sorry, I am very bad at drawings. This is a square. यहाँ पे एक चार्ज है -q, यहाँ पे चार्ज है q माइनस, फिर है +2 q और यहाँ +2. अब हमें ये पूछा गया है कि द रिलेशन बिटवीन q and q for which the potential at the center of the square is 0. यहाँ पे जो है पोटेंशियल यानी b = 0. ठीक है, तो हमें रिलेशन निकालना है कैपिटल Q एंड स्मॉल q में. कब? तब जब द पोटेंशियल एट द सेंटर इज 0. ठीक है. तो potential is denoted by V, we all know, is equal to K Q by R. This is the formula for V, finding out V. ठीक है. अब देखो, सेंटर में सभी कॉर्नर्स के डिस्टेंस सेम रहेंगे सिंस इट इज अ स्क्वायर. Suppose this is A and this is also A. Since it is a square, तो इसके सारे साइड्स सेम ही होंगे. Therefore, diagonals of a square क्या होते हैं? We all know. It is always √2a. बच्चों, अगर ये पता नहीं है आप लोगों को कि हाउ दिस फिगर केम आउट, ये आया है हमें हाइपोटेनस थ्योरम से आता है. सी -q 2q द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इनका डायगोनल निकालते हैं ना हम लोग. तो इट इज़ नॉट अ डायगोनल, इट इज़ दिस वे, वी आर गोइंग दिस वे. ये डायगोनल निकालना है तो हम लोग को जो है राइट एंगल ट्रायंगल लेना पड़ेगा. ये सब हमने 10th में सीखा है और इवन बिफोर दैट. दिस इज ऑल्सो ए. तो व्हाट इज दिस? अगर ये निकालना है तो यू हैव टू यूज हाइपोटेनस थ्योरम. तो इट विल बिकम -2q, -q and 2q the whole square plus 2q and 2q the whole square. This is a square plus this is a square. Therefore, -q 2q the whole square is equal to 2a square. Therefore, -q 2q is equal to √2a. जब हम ये स्क्वायर निकालते हैं तो हमें रूट आ जाता है.
I hope you understood. So, when diagonal of a square is √2a, तो हाफ डायगोनल कितना होगा? It will be a by √2. ठीक है, कैसे आया ये? You might be wondering. See, ये है √2a, इसका हाफ करना है हमें, तो अपॉन 2 कर देंगे हम लोग. फिर हम क्या करेंगे, इसको √2a इंटू √2 अपॉन 2 इंटू √2, यानी मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय √2. ठीक है, देन व्हाट विल वी गेट? टू ए अपॉन 2√2. ये √2 मल्टीप्लाई हो जाएगा व्हेन दीज सी √2 into √2. I think you all people must be knowing better than this, but still when I am going through it, मैं चाहती हूँ कि बच्चों को, जो बच्चे हैं, अगर out of 100 even if 2 children don't know this system, I want to show them. तो ये जो है, ये √2 और ये √2, ये जब दोनों मल्टीप्लाई होते हैं इट बिकम्स अ सिंगल डिजिट 2. तो हम लोगों को इसको सिंगल डिजिट 2 बनाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे √2 से मल्टीप्लाई किया, इसलिए हमें नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ा. तो अब हमें ये दोनों तो कैंसिल हो गए, ये दोनों मिलकर 2 बन गए और ये a आ गया. पर यहाँ पे ऑलरेडी जो 2 था और उसको लग गया साथ में √2. तो अब यहाँ पे जो है हमारा ये √2 2 and 2 will get cancelled and what will remain is a by √2. तो ये आंसर हमारा यहाँ पे आया. I think it is quite clear. अब हमें ये भी पता है कि we know that our potential should be 0. ऐसे हमें क्वेश्चन में दिया है, ये हमें पता है. तो पोटेंशियल इज v इज इक्वल टू 0, ये होना चाहिए ना. तो अज्यूमिंग दैट v इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू, यानी v इज इक्वल टू k इंटू q बाय r. Now we got, see here I have written the formula. So therefore, sorry, I took it. So v is equal to 0 is equal to k into minus q upon a by √2 plus k minus q upon a by √2 plus k 2q, taking all the four sides, a by √2 plus k 2q. यहाँ पे q और स्मॉल q सब सेम नहीं है, जो हमें क्वेश्चन में दिया जाता है ये वो वाले q है. Therefore ये कैसे आया? I'll show you. These all k's will get cancelled. 1 2 3 4. Also these similar things will get cancelled. So what will remain is 0 is equal to minus q plus minus q
प्लस 2q प्लस 2q. ठीक है. Now we'll continue. So 0 is equal to minus q plus minus q plus 2q plus 2q. 0 is equal to, what is 0? 0 is V. V is potential and we are finding a potential. Is equal to q plus minus q plus 2q. Now 0 is equal to q plus q. Therefore q is equal to minus q. Hence option A. Children, I hope you got how I got this answer. See, minus q and plus 2q. Oh, sorry, not this one. This one. Minus q and plus 2q will get q. Minus q and plus 2q. Which one is bigger? These are very simple things. I think मुझे explain भी नहीं करना चाहिए, but still I want it. माइनस 2q क्योंकि छोटा स्मॉल q है एंड प्लस 2q. ठीक है, इनको हम लोग यहाँ पे सॉर्ट कर लेंगे. इस स्टेप में मैंने सिर्फ इन दोनों को सॉल्व किया, इस स्टेप में इन दोनों को सॉल्व किया एंड वी गॉट q सिमिलरली. सो प्लस q एंड therefore q is equal to q. सिंस इधर 0 है तो ये इक्वल टू की साइन इन दोनों के बीच में आ जाएगी. Therefore the option is A. Solution 3. Solution 3. The question says a charge q is placed at the center of the line joining two equal charges q. The system of the three charges will be in equilibrium if q is equal to. See, क्या बोल रहा है वो कि a charge q is placed at the center of a line joining two equal charges q. देखो, एक लाइन है, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है प्लस q और यहाँ पे भी एक पॉजिटिव चार्ज है प्लस q. यहाँ पे हम लोगों ने एक छोटा q इंट्रोड्यूस किया है, एक छोटे चार्ज को हम लोगों ने इस लाइन के बीच में डाल दिया एनीवेयर. ठीक है, तो द सिस्टम ऑफ द थ्री चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ k इज इक्वल टू. यानी ये बोल रहा है कि ये एज यू पीपल नो कि दो पॉजिटिव चार्ज है, यूनिवर्स में कोई भी दो पॉइंट चार्जेस रहेंगे या कोई भी दो ऑब्जेक्ट है वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहा है. और अगर पॉजिटिव चार्जेस है तो एक दूसरे को पुश कर रहा है. ये इसको यहाँ पुश कर रहा है, ढकेल रहा है, ये इसको यहाँ ढकेल रहा है. बट क्योंकि दोनों की ताकत सेम है, ये प्लस q है और ये भी प्लस q है, अगर इनमें से कोई एक प्लस 2q होता या 3q होता, 5q होता, तो ऑब्वियसली इसकी पुश वाली लाइन हट जाती और सिर्फ इसी के पुश की फोर्स को हम मानते कि इसने इसको यहाँ ढकेल दिया क्योंकि ये उससे ज़्यादा ताकतवर है. बट ऐसा नहीं है. नाउ सिंस बोथ आर इक्वल, तो दोनों का पुश इक्वल है, इसलिए ये लाइन इक्विलिब्रियम में है. बट नाउ व्हाट दे आर सेइंग कि हमने और एक छोटा क्यू इधर इंट्रोड्यूस किया तो ये लाइन स्टेबल है, या जो भी एक चीज़ है वो स्टेबल थी ऑलरेडी, पर अब ये नया चार्ज इंट्रोड्यूस करने के बाद भी ये स्टेबिलिटी मेंटेन्ड है. तो ये कहाँ पे प्लेस किया होगा? ये q इज इक्वल टू वॉट? आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट कि ऐसे क्या हुआ होगा कि ये चीज़ स्थिर है, स्टेबल है, ये नया पॉइंट इंट्रोड्यूस करने के बाद भी, तो इसको कहाँ पे प्लेस किया होगा? गॉट इट? तो लेट अस अज्यूम कि this q is placed at point A, this is at point B, and the new charge has been placed at point C.
ये कोई भी डिस्टेंस हो सकता है. दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट. सो therefore here we need to relate the relation between capital Q and small q, ये such that the system is in equilibrium. कि अगर ये इसके बहुत करीब हो जाएगा तो भी ये दोनों एक दूसरे को खींचने लगेंगे, सॉरी रिपेल करने लगेंगे. टू लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, दिस इज़ अ नोन फैक्ट. तो ये दोनों एक दूसरे को बहुत स्ट्रांगली रिपेल करेंगे. या फिर इसको यहाँ पे रखते हैं हम लोग तो भी ये दोनों एक दूसरे को स्ट्रांगली रिपेल करेंगे. तो ऐसा नहीं है. उसने कहा है कि ये क्वेश्चन में बताया गया है कि ये भाई इसमें डाल दिए हैं फिर भी ये इक्विलिब्रियम में है, स्टेबल है ये सिस्टम. तो द सिस्टम को इक्विलिब्रियम में करने के लिए हमें एक रिलेशन निकालना है. तो कंडीशन स्टडीड फॉर इक्विलिब्रियम, जो हम लोगों ने इक्विलिब्रियम के लिए क्या क्या कंडीशंस होते हैं जो हमने पढ़े हैं, उनमें एक ये है कि जब भी कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है तो उस पर नेट फोर्स एक्टिंग शुड बी और विल बी ज़ीरो. सी आई राइट हियर द पॉइंट व्हेन आई वाज म्यूट. तो तब ऐसा था कि मैं तुम लोगों को, सिंस आई वॉज नॉट स्पीकिंग, तो आई यूज टू राइट ईच एंड एवरी लाइन वॉट एवर आई हैव टू एक्सप्लेन ऑन दिस बोर्ड, सो दैट यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट एंड यू कैन मेक नोट्स. नाउ सिंस आई एम स्पीकिंग आई कैन नॉट राइट ईच एंड एवरीथिंग, सो hope it goes directly into your head and you gain from it. उस पर नेट फोर्स होता है, नेट फोर्स एक्टिंग विल बी ज़ीरो. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. ये इक्विलिब्रियम की एक स्टेट है एंड यू हैव टू नो इट वेरी वेल. तो हैंस इफ़ वी से कि ये पूरी बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो पॉइंट बी शुड बी इन इक्विलिब्रियम विथ क्यू एंड ए शुड बी. तो इफ़ बी इज़ इन इक्विलिब्रियम देन टू फोर्सेज ए एंड सी ऑन द पॉइंट बी इज इक्वल टू ज़ीरो. तो स्टार्टिंग विथ पॉइंट बी, हम लोग पॉइंट बी से ही स्टार्ट करते हैं. इसके ऊपर कितने फोर्सेस आएंगे? इसके ऊपर दो फोर्सेस आएंगे. एक पॉजिटिव क्यू चार्ज है ड्यू टू ए, क्योंकि ये तो इन लोग का पुराना रिलेशन है कि ये दोनों एक दूसरे को पुश कर रहे थे, तो ये एक फोर्स तो इसको लग ही रहा है. अब ये छोटा वाला, सिंस इट इज़ नॉट माइनस क्यू, ये माइनस क्यू नहीं है, ये पॉजिटिव क्यू है, तो दैट मीन्स ये भी पॉजिटिव चार्ज है. तो अब इसका भी पुश इसको लग रहा है, स्मॉल ही सही बट इसका भी पुश इसको लग रहा है, और ऑफकोर्स ये भी इसे ढकेल रहा है. तो अब इसके पास कितने पुश हो गए हैं? एक ड्यू टू दिस वन, ये पहला, और एक ड्यू टू दिस वन, ये दो. तो स्टार्टिंग विद बी, हम बी को स्टडी कर रहे हैं अभी. तो ये एक पुश है और ये दूसरा पुश है. तो सी फोर्सेस एक्टिंग ऑन बी. पहला कौन सा है? ड्यू टू ए, रिपल्सिव है ये, इजंट इट? धक्का मार रहा है ना इसको, तो इट इज रिपल्सिव. एंड ड्यू टू सी, ये भी रिपल्सिव है. दोनों भी उसको धक्का मार रहे हैं अपनी अपनी ताकत से, है ना. तो अब हम क्या करेंगे? एंड इफ वी से that this system is in equilibrium, then both these forces should be equal to zero. That is FA, force on A, या force due to A. This is force due to A. This is FA and this is FC. These all are on B. ये दोनों हम B को स्टडी कर रहे हैं. तो देयरफॉर एफ ए यानी फोर्स ड्यू टू ए प्लस फोर्स ड्यू टू सी, यानी बी पर कितना धक्का लग रहा है, इट शुड बी ज़ीरो.
क्यों? क्योंकि हम वो क्वेश्चन में बोला गया है कि ये सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में है। गॉट इट? तो ये ज़ीरो होना ही चाहिए, ये ज़ीरो है तभी वो इक्विलिब्रियम में है। तो नाउ लेट अस कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फोर्स ए। एफ ए क्या है? इट इज़ द फोर्स बिटवीन ए एंड बी। लेट अस कंसिडर द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी एज एक्स। ठीक है, let us consider the distance between A and C as x and the distance between C and B also as x. Got it? तो अब हम देखेंगे force due to A is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught into Q upon 2x the whole square. 2x, this 1x and this 1x. ठीक है, एंड एफ सी, क्योंकि हम लोग ये डिस्टेंस का निकाल रहे हैं, इसमें दो एक्स आएंगे, एंड फोर्स ड्यू टू सी ऑन बी इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon इंटू क्यू दिस क्यू एंड दिस क्यू। यहाँ पे हमने दोनों कैपिटल क्यू लिए, यहाँ पे एक छोटा एक बड़ा आएगा, और इनके बीच का डिस्टेंस है ओनली एक्स। गॉट इट? So let us substitute in equation of equilibrium. Equation of equilibrium substituting. Let us continue, the board is getting. So equation of equilibrium says one upon 4 pi epsilon into q square upon 4x square plus 1/4 pi epsilon into q by q upon x square is equal to 0. This is the equation of equilibrium. ये हमने वहाँ लिखा था q plus q, यहाँ था q into q, this was q into small q, there is a dot. और if you don't, I don't want you to get confused, just ठीक है। तो टेकिंग वन पार्ट ऑन द राइट हैंड साइड, जिस वजह से ये माइनस साइन आ जाती है, गॉट इट? क्योंकि हमें यहाँ ज़ीरो आ गया है। नाउ वी हैव टू कैंसिल एनी वन इक्वेशन। तो इसके लिए सिंस दिस इज ऑल्सो पूरा पॉजिटिव है, ये पूरा पॉजिटिव है, ये भी पूरा पॉजिटिव है, यहाँ पे कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स इट इज़ पॉजिटिव एंड इवन दिस इज़ पॉजिटिव। अब ये दोनों पॉजिटिव को हम लोग ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते हैं, इनमें से किसी एक को हम लोग को माइनस में लाना है। एंड ऑल्सो व्हाट मैथ सेज इज कि कोई एक पॉजिटिव और कोई एक नेगेटिव होना चाहिए। तो इसको नेगेटिव बनाने के लिए वी विल टेक वन ऑफ दिस इक्वेशन ऑन द right hand side of equal to sign. Okay, therefore for cancellation into q इसको यहाँ लेके आ गए, या फिर इसको हम यहाँ से यहाँ कर दिए, ये q स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर माइनस, क्योंकि हम इसको उठा के इक्वल टू के इस तरफ ला रहे हैं, तो इट विल बिकम नेगेटिव, is equal to negative 4 pi epsilon into small q x square. Now see what will get cancelled. See this one will get cancelled, positive and negative, hello, and this one and this one will get cancelled. ये दो क्यू थे, क्यू इंटू क्यू, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। नाउ व्हाट विल रिमेन इज q इज इक्वल टू माइनस क्यू बाई 4।
This is option B. Hope you understand. Question says two charged spheres of radii 10 cm and 15 cm are connected by a thin wire. No charge will flow if they have. हमें ये बोला गया है कि दो चार्ज स्फीयर है, एक का रेडियस है 10 सेंटीमीटर और एक का है 15 सेंटीमीटर। अब ये दोनों को कनेक्ट किया है एक वायर से। अब ये बोल रहे हैं कि नो चार्ज विल फ्लो इन से पोटेंशियल एंड चार्जेस दे फ्लो, यू नो चार्जेस ऑल्सो फ्लो। तो वो ये बोल रहे हैं कि ये चार्जेस कब फ्लो नहीं होंगे यहाँ से वहाँ। गॉट इट? तो हमें ये पता है, वी नो दैट कि कनेक्ट करने पर भी चार्जेस फ्लो कब नहीं होंगे, जब दोनों के पोटेंशियल सेम हो जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन में भी ऑलमोस्ट ऐसे ही था कि दोनों जब पोटेंशियल ज़ीरो रहेगा तो वो जो है हमारा वो सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा, और चार्जेस फ्लो कब नहीं होंगे, जब हमारा पोटेंशियल सेम होगा। एग्जाम्पल, इफ सपोज वन बॉडी इज हायर पोटेंशियल देन द अदर बॉडी, then the charges will flow from higher to lower, but दोनों सेम है, दोनों कप भरे हुए हैं, तो यहाँ से पानी वहाँ जाएगा ही नहीं। Got it? If both the cups have are filled with water and they both are connected, अगर एक हाफ भरा हुआ है और एक फुल है तो यहाँ से पानी वहाँ जा सकता है, लेकिन यहाँ से वहाँ नहीं जाएगा। कब? तब जब दोनों इक्वली फिल्ड है। Got it? तो बट अगर दोनों का पोटेंशियल सेम है देन नो चार्ज विल फ्लो। तो ऑप्शन बी, द सेम पोटेंशियल, वी दोनों का जब सेम होगा तो भले रेडियस छोटा हो या बड़ा हो, तो द चार्जेस विल नॉट फ्लो फ्रॉम वन स्फीयर टू अनदर। हेंस ऑप्शन बी। The question says the electric field inside a spherical shell of uniform surface charge density is, you know, कि बॉडी के अंदर कोई भी the electrical field inside a spherical shell of surface charge density is, options are 0, constant, less than 0, directly proportional to the distance from the center, or नन ऑफ दीज। देखिए, बॉडी के अंदर कोई भी चार्जेस नहीं रहते हैं, सारे चार्जेस बॉडी के ऊपर रहते हैं, तो देयर आर नो चार्जेस। ये हर बॉडी पर अप्लाई होता है, हर बॉडी पे लागू होता है ये रूल कि नो चार्जेस आर इनसाइड द बॉडी, वो स्फीयर हो, बॉल हो, कोई भी चीज़ हो। Charges are always on the surface. On the body. On. Hence, option A, 0. Inside will be 0. Surface charge density will be. If a unit positive charge is taken from one point to another over an equipotential surface, then the work is done on the charge, the work is done by the charge, the work is done constant, no work is done. तो देखिए, जब कभी भी इक्विपोटेंशियल्स की बात करते हैं, then we know if we move along an equipotential body surface, then the potential never changes. Hence we can say there is no potential difference. Got it? अब potential difference नहीं है
तो वर्क डन भी क्या होगा, 0. सी व्हेन देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस, तो वर्क डन भी नो वर्क डन. और वर्क डन इज 0. Hence option D. ठीक है, देखो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, सब जगह पे पोटेंशियल जो है वो इक्वल है. वो यहाँ से वहाँ अगर मतलब लेके जा रहे हैं तो भी सी द डायग्राम विल बी दिस वे कि ये इक्वी, तो यहाँ से वहाँ कहीं भी चार्ज है, देयर इज नो वर्क डन. तो जब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा जहाँ भी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है वहाँ पे वर्क डन नहीं होगा. क्वेश्चन सेज 3 charges 2q minus q are located at the vertices of an equilateral triangle. See, this is an equilateral triangle. This is 2q, positive 2q. See, whenever you see the question, you read the question, तो इन चीज़ों पे बहुत ध्यान देना है कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है. इतनी हल्की, देखो ये मामूली सी लाइन है, बट इट मेक्स अ ज़मीन आसमान का फर्क. इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. हमारा पूरा क्वेश्चन ही बदल के रख देगा इफ़ यू इग्नोर दीज साइंस. कि यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है दैट मीन्स इट इज़ पॉजिटिव, यहाँ पे एक हल्की सी लाइन है दैट मीन्स इट इज़ नेगेटिव. तो ये पूरा इक्वेशन को चेंज कर देगा इफ़ यू इग्नोर दीज साइंस. तो दीज 3 आर लोकेटेड at the vertices of an equilateral triangle at the center of a triangle. Sorry, at the center of the triangle. Now the options are, the field is 0. This is the center of the triangle. तो वो बोल रहा है कि यहाँ पे the field is 0 but potential is non-zero. The field is non-zero but potential is 0. Both field and potential are 0 and both field and potential are non-zero. So we have to find what is the zone. अब देखो बच्चों, ये है इक्विलैटरल ट्रायंगल. इसका मतलब ही ये हो गया कि सारे साइड्स इक्वल होंगे. इफ दिस इज ए, इवन दिस विल बी ए एंड दिस विल बी ए. तो हमें यहाँ पे 2 चीज़ ढूंढनी है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. हमें क्या ढूंढना है, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. क्वेश्चन पढ़ते ही हमें पता हो लग जाना चाहिए कि हमें एक्चुअल में पूछा क्या है. गॉट इट? सो इफ़ यू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग दिस MCQs या फिर तुम्हारे टेक्सचुअल जो भी है, देन यू विल कम टू नो, यू विल बी अ एक्सपर्ट. एंड क्वेश्चन पढ़ते ही तुम्हारे जहन में आ जाना चाहिए कि तुम्हें क्या ढूंढना है एक्चुअल में. ठीक है, तो अभी हमें ये 2 चीज़ें ढूंढनी है. तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कब होती है, जब हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज इंट्रोड्यूस करते हैं. व्हेनेवर वी इंट्रोड्यूस अ पॉजिटिव चार्ज, यू नो पॉजिटिव चार्ज को टेस्ट चार्ज भी कहा जाता है. क्योंकि हम लोग कभी भी जो साइंटिस्ट वगैरह है या जो भी है ये एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, कोई भी फिज़िक्स का केमिस्ट्री का कुछ भी मतलब ये जो भी, तो उनमें जब भी हम उनको टेस्ट करना पड़ता है या कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, दे इंट्रोड्यूस अ चार्ज, और वो चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज. इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज़ नेवर नेगेटिव. सो हम लोग भी यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज इंट्रोड्यूस करते हैं. और दैट इज़ जब एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज डालते हैं तो उसके ऊपर कितना फोर्स आता है, दैट इज़ नथिंग बट आवर इलेक्ट्रिक फील्ड. यानी जैसे हम लोगों ने यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज इंट्रोड्यूस किया, तो अब देखो क्या होगा. जब भी हम लोग एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हम लोग यहाँ इंट्रोड्यूस करते हैं, सपोज यहाँ पे मैंने एक पॉजिटिव की इंट्रोड्यूस की. अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ये 2 पॉजिटिव है, तो ये तो जैसे बैक टू बैक क्वेश्चंस में मैंने बताया था कि ये इसको
दोनों सिंस बोथ आर पॉजिटिव दे बोथ विल रिपेल ईच अदर. ये इसको ढकेलेगा, ये इसको ढकेलेगा. ये यहाँ से पुश कर रहा है इसको, मेरे पास मत आ, ये यहाँ से पुश कर रहा है. बट वॉट विल हैपन कि ये तो बेचारा दुबला पतला है, इसके पास इससे डबल ताकत है, तो इसका पुश ज़्यादा होगा, तो हमारा ये एरो हट जाएगा और ये पुश रहेगा डाउनवर्ड्स. तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये डाउनवर्ड पुश है. ठीक है. And even from the diagram we can see that my positive charge is being pulled by all the forces. And so you can say कि there will be some electric field present. यहाँ कहीं ना कहीं electric field present होगी, क्योंकि ये वाला इसको खींचेगा. ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये इसको यहाँ खींच रहा है और ये इसको यहाँ खींच रहा है. ये भी नेगेटिव है, ये इसको यहाँ खींच रहा है और ये इसको यहाँ खींच रहा है. यानी इस पे चारों तरफ से फोर्स है. पर देखो ये डाउनवर्ड है, ये भी डाउनवर्ड है, ये भी डाउनवर्ड है, तो यहाँ पे मैक्सिमम जो है वो डाउनवर्ड फोर्सेस है. हेंस वी कैन से कि देयर विल बी सम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट. Hence, even from the diagram, we can see that there are positive charge being pulled by this positive charge is being pulled by all the forces, and so you can say that there will be some electric field present, definitely. Therefore, the conclusion is that there is here the electric field is non-zero. ये तो पक्का हो गया कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये कहीं ना कहीं से पुश और पुल हो रहा है. तो ये हमें दर्शाता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है. ठीक है. नॉन ज़ीरो है यहाँ पे. नॉन ज़ीरो यानी इसकी कोई वैल्यू है. इट इज़ नॉट ज़ीरो एट ऑल, इट हैज़ सम वैल्यू. ठीक है. अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे. तो लेट अस अज्यूम कि हमने जो सेंटर में चार्ज डाला था, इट इज़ एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द 3 वर्टाइसेस. यानी ये जो सेंटर में ये चार्ज डाला है, ये x है, ये x है और ये x है. ये सारे डिस्टेंस x है. सो लेट अस कैलकुलेट द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट. वी नो देयर विल बी 3 particular potentials present out there. One due to positive 2q, second due to minus q, and third due to minus q. So let us write down the formula for potential. And we all know the formula for the potential. हम लोग पिछले 3-4 क्वेश्चन पोटेंशियल पर ही करते आ रहे. द फंडा इज के एक ही सिस्टम के 2-3 क्वेश्चन करोगे तो माइंड में शायद अच्छे से आप लोगों के आ जाएगा. एंड ऑलवेज राइटिंग 1/4πε, 1/4πε क्यू, सॉरी के, ये लिखते लिखते शायद तुम्हें याद हो जाए. तो इट इज़ जस्ट लाइक अ प्रैक्टिस फॉर टेकिंग सेम काइंड ऑफ MCQs फॉर यू इन सीरीज. ठीक है. तो V इज इक्वल टू पोटेंशियल फॉर वन चार्ज. इट इज़ पोटेंशियल फॉर वन चार्ज. ये एक ही चार्ज है ना, हम उसी का कैलकुलेट कर रहे हैं. ठीक है. तो ये क्या होता है पोटेंशियल फॉर वन चार्ज. बाय नाउ यू माइट हैव लर्न दिस थिंग, दिस फॉर्मूला बाय हार्ट. देयरफॉर V इज इक्वल टू 1/4πε इंटू 2q/x प्लस 1 इसका हो गया. अब हम इसका लेंगे 1/4πε इंटू -q/x प्लस 1/4πε इंटू -q/x. इसका तीनों का हो गया. ये 1, 2 and 3. All the 4 vertices are covered. Taking out common terms. हम लोग ये जो कॉमन टर्म्स हैं उनको अगर हम लोग बाहर लेते हैं, ये वाला, क्योंकि x कैंसिल हो जाएंगे. नो सॉरी,
V is equal to 1/4 pi epsilon x. 2q. So V is equal to 1/4 pi dx 2q minus q. This is taking out the common ones. Common terms. We know on calculation this 2q minus q and minus q, this should be equal to 0. Therefore V is equal to 0. Therefore electric field is non-zero and potential is equal to 0. हमसे यही पूछा गया था कि क्या ज़ीरो होगा, क्या ज़ीरो नहीं होगा, या दोनों ज़ीरो होंगे या दोनों नॉन ज़ीरो होंगे. ये 4 ऑप्शन है हमारे. एंड सो वी गॉट हियर के इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन ज़ीरो होगी लेकिन पोटेंशियल जो है वो ज़ीरो. ठीक है. हेंस ऑप्शन बी. फिगर shows, there is a figure, it shows the electric lines of force emerging from a charged body. This is a charged body, suppose. And if the electric field at A and B are EA and EB respectively, and if the displacement between A and B is R, then यानी वो हमको क्या बोल रहा है कि if this is a charged body, तो यहाँ से एक लाइन अगर हम बनाते हैं तो दिस पॉइंट इज़ ए एंड दिस पॉइंट इज़ बी. ठीक है. अब वो बता रहा है कि अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको हम नाम देंगे ई ए, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको हम नाम देंगे E. तो वो ये पूछ रहा है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ से यहाँ तक का, तो इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. ये जो है ये डिस्टेंस आर है. ठीक है. तो सी चिल्ड्रंस, ए पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई ए है और बी पर ई बी है. वी नो वी नीड टू कैलकुलेट द रिलेशन बिटवीन ई बी एंड ई ए. ये हमें कैलकुलेट करना है. वी शुड नो व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट, व्हाट इज़ बीइंग आस्क्ड. सो एज वी नो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या लाइन्स ऑफ फोर्स जहाँ पर कन्वर्ज होती है, यू नो कन्वर्ज मीन्स टू मीट एट वन प्लेस. दिस इज़ कन्वर्जिंग. तो जहाँ पे कन्वर्ज होती है, ये यहाँ पे कन्वर्जिंग दिख रही है, यानी जहाँ पर घनी होती है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस घनी होती है वो पॉइंट स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट होता है, स्ट्रॉन्ग. और जहाँ पे डाइवर्ज होती है सी एट पॉइंट बी, ये इफ़ आई extend these lines, see where they are going. See, even if I draw in between, see ये कितना एरिया कवर कर रहे हैं, ये देखो, और ये कितना एरिया कवर कर रहे हैं. सो यहाँ पे ये जो है इसको डाइवर्जिंग बोलते हैं. दीज आर डाइवर्जिंग लाइन्स एट पॉइंट बी. सो यहाँ पे वीकेस्ट पॉइंट है, यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है. तो A इज़ स्ट्रॉन्गेस्ट एंड B इज़ द वीकेस्ट. तो इसका मतलब, और जहाँ पे ये लाइंस डाइवर्ज हो रही है वो वीकेस्ट है. तो इट इज़ वेरी वेरी क्रिस्टल क्लियर कि E A इज़ स्ट्रॉन्गर देन E B.
दिस इज ऑप्शन ए। इट इज़ वेरी क्लियर, इसमें कुछ कैलकुलेशन करना ही नहीं है। ये ऐसे क्वेश्चंस मुफ्त के मार्क्स देते हैं हमें, एंड these questions, such type of questions are truly based on our knowledge कि हमने थियोरी कितनी अच्छे से पढ़ी है। ये चीज़ें अगर हम थियोरी अच्छे से पढ़ते हैं तो ये चीज़ें हमारी कॉमन सेंस बन जाती है कि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे ज़्यादा वो घनी होती है, वो जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट रहती है, यहाँ पे वीकेस्ट है। तो देखकर ही हमें पता चल जाता है कि ये इज स्ट्रॉन्गर देन ई बी। Question number 9 says the magnitude of electric field intensity E is such that an electron placed in it would experience an electrical force equal to its weight is given by। ठीक है, तो यानी यहाँ पे हमें पूछा गया है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछी गई है। तो यहाँ पर हम फोर्स का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग फोर्स का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। जैसे F इज इक्वल टू mg यानी वेट में, वी ऑल नो फोर्स इज इक्वल टू ma। 8th 9th में पढ़ा है फोर्स इज इक्वल टू ma, वेयर F स्टैंड्स फॉर फोर्स, m फॉर मास एंड a फॉर एक्सेलरेशन। जब ये ग्रेविटेशनल फोर्स में आ जाता है फोर्स लगने वाला, तो वहाँ पे हम g लिखते हैं, एंड F इज इक्वल टू चार्ज इनटू इंटेंसिटी। ये फील्ड की बात होती है तब होता है, एक फील्ड है तो उसमें चार्ज रहते हैं और चार्ज और उनकी इंटेंसिटी के बीच की जो रिलेशन रहता है इट सम अप टू फोर्स। तो देयरफॉर F इज इक्वल टू चार्ज इज Q एंड इंटेंसिटी इज E। क्लियर? बट वी नो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर E चार्ज होता है। ठीक है, देयरफॉर F इज इक्वल टू E इंटू E। Q की जगह पर मैंने E लिखा है और ये, बट गिवन इज फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हमें दिया गया है, क्या दिया है कि फोर्स इज इक्वल टू So let us substitute mg is equal to E into E. Therefore E is equal to mg by E. देखिए, hence option B. The question here says on rotating a point charge having a charge Q around a charge capital Q in a circle of radius R, the work done will be. Got it? देखिए, ये सपोज ये पॉइंट Q है, इसको हम रोटेट कर रहे हैं अराउंड दिस पॉइंट Q। ये छोटे चार्ज को हम ये चार्ज के अराउंड ऐसे रोटेट कर रहे हैं जिनका रेडियस है a, एंड दिस इज पॉजिटिव एंड इवन दिस इज पॉजिटिव। इफ द साइन इज नॉट गिवन वी हैव टू कंसिडर इट पॉजिटिव ओनली। जब भी साइन नहीं दिया है किसी चीज़ का तो हमें उसे पॉजिटिव ही कंसिडर करना है। तो चार्ज के इर्द गिर्द, चार्ज के आसपास जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस बनता है। इक्विपोटेंशियल यानी इक्वल, समानता में,
हंस अगर हम इक्विपोटेंशियल सरफेस पर एक पॉजिटिव चार्ज को मूव करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, दैट इज वर्क डन इज ज़ीरो। ये ऐसा वाला हम लोगों ने अभी 2 सम्स पीछे ही किए हैं। वर्क डन हियर इज ज़ीरो, हेंस ऑप्शन सी। ये एक थियोरेटिकल स्टेटमेंट है कि जब भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पे तुम चार्ज को मूव करते हो तो वर्क डन ज़ीरो होता है। इफ़ यू नो योर थियोरी वेरी वेल देन इट इज़ अ केक वर्क फॉर यू। 4 मार्क्स मुफ्त में आपको मिलेगी। द क्वेश्चन सेज 2 पैरेलल प्लेट्स आर 2 सेंटीमीटर अपार्ट। The potential difference of 10 volt is applied between them. The electric field between the plates is, see, 2 प्लेट्स है, इनके बीच का डिस्टेंस हमें दिया है 2 सेंटीमीटर। और 10 वोल्ट अप्लाई किया है, अप्लाई बिटवीन दैम, द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दैम, तो हमें ढूंढना है E। तो हमें दिया है डायमीटर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, V इज इक्वल टू 10 वोल्ट, ये पोटेंशियल है हमारा, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमें ढूंढनी है। तो वी ऑल नो द फॉर्मूला V इज इक्वल टू ED। सी, ये सारी चीज़ें तुम्हें याद रखनी है एंड ये याद ऐसे कर करके, सी कितने लेटर ऑफ वर्ड्स है, 1 2 3, ये 3 है, पर ये याद नहीं होंगे तुम्हें ऐसे अनलेस एंड अंटिल यू गो ऑन प्रैक्टिसिंग। ये वी गेट कन्फ्यूज्ड, देयर आर सो मैनी फार्मूलाज जिनको सिर्फ तोड़ मरोड़ के ही नए फार्मूलाज बनते हैं। देयर आर ओनली फ्यू फार्मूलाज जिनको तोड़ के जब हम लोग जब पढ़ते हैं तो लगता है कि इसमें 10 फार्मूलेज ही है, बट व्हेन वी गो ऑन प्रैक्टिसिंग द प्रॉब्लम्स तो हमें फिर पता चलता है उन्हीं को, इसको इक्वल टू के इस तरफ ले लिए, इसको ऐसे कर दिए, एंड वी गेट न्यू फार्मूलाज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड द नीड ऑफ द प्रॉब्लम। गॉट इट? तो वी हैव टू कन्वर्ट दैम इनटू द सेंटीमीटर इनटू मीटर। ये सेंटीमीटर में दिया है तो कभी भी हम लोग को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेना है। तो 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻² मीटर। ये भी कन्वर्जन्स आप लोगों को अच्छे से आने चाहिए। नाउ E इज इक्वल टू V/D, इसी को मैंने ट्रांसफॉर्म किया, ठीक है, इज इक्वल टू 10/2 इंटू 10⁻²। 2 1s are 2 5s are, therefore 5 into 10⁻²। ये जब 10⁻² ऊपर आएगा, यू ऑल माइट बी नोइंग, लास्ट वाले पार्ट में भी मैंने बताया था कि जब हम इनको ऊपर लेते हैं तो द साइन चेंजेस। इफ़ इट इज़ 10⁻², हियर इट विल बिकम 10⁻²। अगर यहाँ पे 10⁻² है, जब ये ऊपर जाएगी तो द साइन विल चेंज, 10⁻² हो जाएगी। होप यू गेट इट। देयरफॉर E इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻², विच सम्स अप टू 500 न्यूटन per coulomb. Hence option B.